آزادی 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 کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر قائدین کی موجودگی میں آپ کے نعروں کی گونج میں ہمارے معزز مہمان ملک پاکستان کی عظیم قومی شخصیت جناب محترم نصر جاوید صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ محترم جناب نصر جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کشمیر کے حوالے سے ہم ان کی محبت کے ساتھ ایک دن تو مناتے ہیں، جس طرح میرے والد احترام بھائی نے بتایا 30 سال سے زیادہ عرصہ پہلے قاضی حسین احمد اللہ ان پہ کروڑ رحمت کرے، انہوں نے یہ دن کا آغاز کیا۔ پھر اس ملک کے اندر 5 فروری کے حوالے سے چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج 19 سے لے کے 23 پر آپ کھڑے ہیں، 1200 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، کشمیر کے اندر کرفیو کی دنیا چل رہی ہے۔ میں اس پر بات کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں جو اپنے حوالے سے عرض کرتا ہوں، جس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر شرم کے ساتھ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے جس وقت میں کشمیر کی بیٹی کا تذکرہ کروں گا، اس کے رک جانے کا تذکرہ کروں گا، شاید یہ سوال بھی میرے سامنے آئے گا کہ رات ہونے والا اسلام آباد کے اندر کوئی آدھی رات پر نہیں، کسی گاؤں دیہی علاقے کے اندر نہیں، جنگلات کے اندر نہیں، جو ہمارا تلاؤ اور اسلام آباد کے نام پر ہے، ایک بیٹی اگر وہ گھر سے نکلتی ہے اور 8 بجے درندگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم ملک کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم بات کرنے کے ساتھ، جیسے میرے بھائیوں نے قیدین نے تذکرہ کیا کہ آج پشاور میں ہونے والا واقعہ، جہاں پر قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہو اور قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، آج دنیا کے اندر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کیفیت حالت سے گزرتے ہوئے میں اگر یہ سمجھوں کہ کشمیر کے حوالے سے اغیار نے نہیں، دونوں دوسروں کو کیا اس بات پہ شکوہ کروں کہ آج ملک کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پڑھتے ہوئے بھی اگر آدمی یہ سوچے کہ یار اگر میں نے یہ بات کی تو دیکھیے جہاد کے کھاتے کے اندر یہ بات آئے گی، دنیا کفر کیا سوچے گا؟ دنیا کی وہ ذلیل قومیں، وہ کسی کمپنی کے نام پر کبھی برے صغیر کے اندر، کبھی انہوں نے ہمارے گھیرے FATF کے نام پر، کبھی IMF کے نام پر، وہ دیکھیے ساری درندگی وہی ہے۔ پھر معذرت کے ساتھ میں تو حکمرانوں سے نہ درخواست کا قائل ہوں، نہ کسی سے دنیا کے اندر اپنے اللہ کے علاوہ میں اپیل کا قائل ہوں۔ اگر ہم اسی بات پر ہی سوچتے رہتے ہیں، اسی دروازے کا انتظار کرتے، وہ رشیا کی شکل کے اندر جو اسی پاکستان کے لیے آئے تھے، شاید ان کا علاج نہ ہو سکتا، جو دنیا کے اندر اتحادیوں کی شکل کے اندر آئے تھے، شاید ان کا علاج نہ ہو سکتا۔ میں کشمیر پر بات کرنے سے پہلے بالخصوص اسٹیج پر بیٹھنے والے وہ سیاسی یا مذہبی قیادت کے لوگ ہو جو
मर्जी दुनिया के अंदर पैगाम दे लो। जिस वक्त देखिए जो मसला है हमारे मुल्क के अंदर, आज 3 चीज़ों पर सबसे पहले हमें मसलकी तौर पर, मजहबी तौर पर तकसीम किया गया। और तकसीम होने वाला कौन, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं देता, मैं भी इसका हिस्सा बना। और उन्होंने मजहब के नाम पर जो कुछ दुनिया के मुसलमानों के मुल्कों के अंदर हुआ, और देखिए उसके साथ वो मजहब का मसला तो अपनी जगह पर, वो लोग जो उलमा को मौलवी कह के कि इनके मसले हैं, आज देखिए उससे बहुत आगे सियासत की दुनिया के अंदर जो खलीज है, आज देखिए नफरतों की दुनिया तो इसके सियासत के नाम पर, अगर कत्ल की दुनिया तो सियासत के नाम पर, एक दूसरे के बारे में वीडियो जारी करना तो सियासत के नाम पर, हर रोज नफरत की जगह पर वो देखिए वो बढ़ती जा रही है। फिर देखिए किसका कितना वो देखिए इस बात के अंदर कसूर है। मैं किसी पर इल्जाम देने से पहले मेरा सिर्फ ये सवाल है, वो मसला फौज और आवाम के अंदर दूरी का हो, वो मसला मसला की बुनियाद पर हो, वो मसला सियासत की बुनियाद पर हो। जिस वक्त कलमा पढ़ने वाले वो देखे इत्तेहाद की दुनिया के अंदर नहीं आएंगे, दुनिया कुफर भी हमसे यही चाहता है कि हमें किसी तरह से तकसीम कर दिया जाए, और उसके साथ फिर वो दुनिया के अंदर वो दरिंदगी की दुनिया के अंदर जिए, वो मुसलमानों का कत्ल करे, वो मुसलमानों की इस्मतों को बर्बाद करे, वो किताबुल्लाह की बेहुरमती करे, वो मेरे नबी के हक शह किए, वो सारा कुछ उन्होंने बाद में किया, सबसे पहले हमें तकसीम किया। अब फिर से जरूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले वो कलमे की बुनियाद पर वो उम्मत का तसव्वुर पैदा करने के साथ लोगों के अंदर ये शऊर का पैदा करना, जो इस बात का हम सब दावा करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा नबी एक है, हमारा दीन एक है, हमारा इस्लाम एक है। सिर्फ दुआ कर दो अल्लाह हम सबको एक कर दे। मेरे बात पर एहतराम भाइयों, कश्मीर के हवाले से गुजारिश है कि आज मसला कश्मीर का मसला नहीं है, मसला सिर्फ लफ्ज़ कुरान की हद तक नहीं। अब देखिए हमारा मसला ये हर चीज़ जो है हमारे ईमान का मसला है, ईमान का मसला। अगर खित्ते का मसला होता तो शायद इस पर सौदेबाजी हो सकती। दुनिया के अंदर विरासत समझ के इसको छोड़ दिया जाता है। जब हमने इस बात के लिए नारा बुलंद किया, कश्मीरियों के साथ रिश्ता किया, कश्मीरियों से रिश्ता किया, सबसे बड़ा दुनिया के अंदर कोई रिश्ता है तो वो ईमान का रिश्ता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिश्ता है तो इस्लाम का रिश्ता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिश्ता वो तौहीद का रिश्ता है, वो सबसे बड़ा रिश्ता वो हमारा रिसालत का रिश्ता है, वो उनके साथ हमारे कलमे का रिश्ता है। वो सिर्फ पानियों का मसला नहीं है, सिर्फ हमारी शरक का मसला नहीं है, सिर्फ हमारे खित्ते का मसला नहीं है, सिर्फ मुल्कों का मसला नहीं है, फिर तकसीम का मसला नहीं है। अगर किताबुल्लाह का मसला, हमारे ईमान का मसला, अगर नबी की रिसालत का मसला, हमारे ईमान का मसला, अगर कश्मीर का मसला, हमारे ईमान का मसला, अगर बैतुल्लाह का मसला, हमारे ईमान का मसला, जब हमने ये नारा बुलंद किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये मुल्कों के मसले नहीं। आज दुनिया के अंदर हमारा जुर्म पाकिस्तानी होना नहीं है, दुनिया के अंदर किसी का जुर्म फलस्तीनी होना नहीं है, दुनिया के अंदर किसी का जुर्म वो कश्मीरी होना नहीं है। अगर दुनिया के अंदर हम सब का जुर्म है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ना है। रब्बे काबा की कसम, इस रिश्ते को निभाने के लिए अल्लाह की कसम, इसको देखिए इस वफा के लिए हमें दुनिया के अंदर जो भी कीमत अदा करनी पड़ी, रब्बे काबा की कसम हम तैयार हैं इस कीमत अदा करने के लिए। सिर्फ ये जान जान क्या है, मैं वही जुमला कहता हूँ जो सहाबी रसूल ने कहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस वक़्त वो तेल में गिरने से पहले उसकी आंखों में आंसू आए तो देखिए उस ईसाई सलीबी बादशाह ने पूछा तो तू तो बहुत डटा हुआ था, ना तुझे तीरों तलवार की परवाह, ना तुझे देखे इस बात की परवाह, ना तू इस बात को खातर में लाने वाला, ना तू दौलत को खातर में लाने वाला, ना तू मुल्कों के
वाला, आप किस बात पे रो दिया? उसने कहा रोना मेरी जान का रोना नहीं है, रोना मेरा दुनिया का छोड़ना रोना नहीं है, मेरा रोना इस बात के लिए नहीं है, मेरा तेल में गिरना मसला नहीं है, मैं तो इस बात पे रो रहा हूं कि सिर्फ एक जान कुर्बान करके अल्लाह के सामने पेश किया जाऊंगा। मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा? मैं चाहता था जितने जिस्म पर बाल है मुझे उसकी अल्लाह जाने दे देता, मैं एक एक करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता। मैं भी कह सकता कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते के अंदर कुर्बानी दे के आया हूँ। हम देखें इसी वफा के लिए, वो किताबुल्लाह का मसला हो, वो खत्म नबूवत का मसला हो, वो कश्मीर का मसला हो, देखिए माल और वफा की दुनिया के अंदर, ये आवाज के उठाने की दुनिया के अंदर सिर्फ इतनी बार नहीं, वो कुर्बानी आवाज के साथ हो, वो माल के साथ हो, वो जान के साथ हो। अल्लाह की कसम हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और उसके साथ मैं वही बात करता हूं कि याद है कि तुम्हें कि आज वो कश्मीरी के जिस वक्त उसके देखिए सीने पर गोली तानी गई, उसने आर्मी के फौजी को सिर्फ इतनी बात कहते हुए उसने कहा जरा रुक जा, मुझे फायर करने से पहले उसने समझा शायद ये मदद करेगा, ये दौड़ेगा। उसने अपने बटन को खोलते हुए उसने उस वक्त ये जुमला कहा था, उसने कहा सुनने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर मुझे हिट कर दिया जाए, मैं इस आज़ादी की कीमत पे कत्ल कर दिया जाऊं, तो तुम मेरे कत्ल पे कह देना आज़ादे, मेरा जनाजा उठे तो कह देना आज़ादे, जिस वक्त मुझे कफन दिया जाए तो कफन पे लिख देना आज़ादे, जिस वक्त मुझे कब्र में दफन किया जाए मेरी कब्र पे कह देना आज़ादे, जिस वक्त पलट के मेरे बच्चों के अंदर कह दो उनको भी कह देना आज़ादे। आज हमने वो दुनिया के अंदर जीने वालों, मैं कितने उन कश्मीरियों को साथी तौर पर जानता हूँ, शहादत के वक्त सिर्फ इतना जुमला कह गए कि हमें बतौर अमानत जमीन के अंदर दफन कर देना, जिस वक्त कल ये कश्मीर आजाद हो जाएगा हमें निकाल कर जमीन के अंदर दफन करना। हमने इन वफाओं के लिए ये देखे इस वफा का सबूत दिया है। आपको याद होगा अली गिलानी, उसमें अल्लाह करोड़ रहमत करे, वो बुरा शख्स जो 80 साल से ज्यादा उम्र रखने वाला, जिसने दुनिया के अंदर वो अपनी जवानी को गुजारा तो सलाखों के पीछे, अपने बुढ़ापे को गुजारा तो सलाखों के पीछे, अपनी बीमारी को गुजारा तो सलाखों के पीछे, दुनिया फानी को छोड़ने से पहले उस शख्स ने सिर्फ इतना जुमला कहा, उसने कहा कि जिस वक्त मेरे कफन दिया जाए तो वो कफन पर भी लिख देना कि देखिए पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा मेरा जनाजा उठे तो तुम ये जुमला कह देना कि देखिए पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ये जुमला कहा कि लोगों जिस वक्त मेरा जनाजा उठेगा उस वक्त में ये ऐलान कर देना, उस शख्स का ये जुमला कह देना कि देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता है ईमान की वजह से, इस्लाम की वजह से, इस्लाम की वजह से पाकिस्तान के साथ रिश्ते का ऐलान करते हुए उसने कहा कि देखिए पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। उसके जवाब के अंदर प्रोफेसर हाफिज सईद हाफिज़ुल्लाह ने मेरे अमीर में यह जुमला कहा, इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। उसकी जगह पे अगर मुसल्लत आलम ने 5 लाख लोगों को खड़ा करके जिस वक्त इंडियन फौज के सामने सीना तान के जब उसने कहा था जो पाकिस्तानी बच्चों को लहराएगा उसको हेड कर दिया जाए, जो वहां पर खड़ा हो उसको हेड कर दिया जाए, जो कहे पाकिस्तान से रिश्ता किया उसको हेड कर दिया जाए, जो कहे कश्मीरियों से रिश्ता किया हेड कर दिया जाए। उसने देखिए इस बात पे वो परचम लहराते हुए ये जुमला कहा था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये जुमला कहा था कि हाफिज सईद का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, आज नहीं तो कल। रब्बे काबा की कसम वो वक्त आएगा कि जिस वक्त कश्मीर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। मेरी बात दोबारा से सुनते हुए मेरे भाई,
शायद आज दुश्मन को ये समझने में गलती लगी है, मैं भी आपकी तरह दुनिया के अंदर आज वो बगले बजाता हुआ इंडिया इस खुशफहमी के अंदर है। हमारे अंदरूनी मुल्क की खलफशारी की वजह से, हमारे इन मसाइल की वजह से उसको बड़ी खुशी है। और बिलखसूस मोदी और उसका वजीर दाखिला और आए दिन उनका ये ख्वाब देखना और ये जुमला कहना कि देखिए आज तुम कश्मीर की बात करते हो, अगर हमसे बात करनी है जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हुए उस कश्मीर की बात करो, अगर हमसे बात करनी है तो गिलगित की बात करो, अगर हमसे बात करनी है तो सकर्दू की बात करो। सकर्दू तो दूर की बात है, अगर वो देखिए ये तो दूर की बात है। मैं सिर्फ इतना जुमला कहना चाहता हूँ कि आज उसको इस बात की भूल हुई है, शायद उसको इस बात में समझने में गलती लगी हुई है। यकीनन हमारे अंदर मसाइल होंगे, लेकिन मसला कश्मीर हो, कश्मीर की आज़ादी हो या इंडिया की बर्बादी हो, इंशाअल्लाह ये कौम एक है इंशाअल्लाह। मेरे भाई, उस वक्त ना हमारा मसला का मसला, ना हमारा कोई सियासी मसला, ना हमारा कोई बरादरियों का मसला, इस मुल्क के दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, किताबुल्लाह के दिफा के लिए दुआ ही कर दो। मैं चाहता हूं जिस तरह अल्लाह ने आज इस मुल्क के अंदर एक खैर की बात कहने लगा, पूरी दुनिया की कुफर पर जो परेशानी वो किया है, जहां पर इस मुल्क के अंदर जो शख्स किताबुल्लाह की बेहुरमती करता है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, मैं इस पर मसाले नहीं, आपके ज़हन में बहुत सारी बातें आएंगी। वो 24 घंटे से पहले या इस मुल्क में नहीं होता या अल्लाह की ज़मीन पर नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, अल्लाह की कसम वो वक़्त आने को है, ये पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, ये कोई देखिए मजाक तो नहीं दुनिया के अंदर कि जो उठे वो जो हमारे कुरान को जला दे, जो उठे हमारे नबी की गुस्ताखी करे। मैं वही जुमला कहना चाहता हूँ जो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा था। किसी ने पूछा कि अगर नबी की गुस्ताखी हो जाए तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा करना क्या है, फिर जी के क्या करना है, करना क्या है, फिर जी के क्या करना है। और मेरा भाई, हमारी जिंदगियों के अंदर अगर कश्मीर चला गया तो हमने जी के क्या करना है? अगर हमारी जिंदगी के अंदर हमारे नबी की गुस्ताखी हो जाए, हमने जी के क्या करना है? और अगर हमारी जिंदगियों के अंदर किताबुल्लाह की बेहुरमती हो जाए, हमने जिंदा रह के क्या करना है? फिर तो जमीन के ऊपर वाले हिस्से से, अल्लाह की कसम, जमीन के नीचे वाला हिस्सा बेहतर है। सिर्फ बेहतर नहीं कि कब्रों में चले गए। ये सिर्फ वो दुनिया के ऊपर क्या समझता है, सिर्फ 5 फरवरी के हद तक, सिर्फ ये एक प्रेस क्लब की हवा तक हमने इसके जरिए कोई आवाज पहुंचाना चाहते हैं, न उनसे कोई दरखास्त करना चाहते हैं, न उनसे हम अपील करना चाहते हैं। मैं तो अपनों से दरखास्त करता हूं, आइए उनको छोड़िए, अपनी सफों के अंदर हम इत्तेहाद पैदा करें, आओ हम किताबों सुन्नत पर मिलकर खड़े हो। और बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहता हूं, जो किसी ने कहा था, ये भीख नहीं आज़ादी है, ये मांगी नहीं जाती, ये छीनी जाती है। इंशाअल्लाह वो वक़्त आएगा, अल्लाह के फजल से ये कश्मीर भी आज़ाद होगा, इंडिया भी बर्बाद होगा, और दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, अल्लाह की ज़मीन पर बालादस्ती होगी तो किताब व सुन्नत की होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।